So today we are going to see what is user acceptance testing. So what we do in user acceptance testing is that whatever we have applied means we have developed and tested. So the same application will be provided to client, and this is a separate environment, right? For UAT we have separate environment in our organization. So every time we are giving client to the demo to the client demo to the client, it will be done in one environment which is more stable, right? So in some organization there is some user acceptance testing environment, UAT environment, on which we perform this UAT testing. Okay, so this is a separate environment, this is a separate website. Suppose UAT Lotus Hospital.com. So this will be Lotus Hospital's website, but this is a UAT environment. So every time we have performed or we have built everything, we have done coding and testing on some application, and our build is stable. Now we have to give a demo to the client, so that is a UAT. For that we are deploying the build on UAT, and on the same environment we will be giving demo to the client, and in which demo we will get a feedback from customer. Okay, we will receive feedback from the customer. If he is good with the product, then we will directly deploy this build to production, right? Or we receive any feedback, then we will work on that feedback. So for that feedback we will create one user story in current sprint. So on that feedback we will, as a team, we will work. So coder will do coding, development team will do development of the feedback item, then tester team will test that application or test that feedback item, and then we will again give demo to the customer, and we will deploy these changes to production environment. So why there is a need of UAT testing? Okay, why we have to do user acceptance testing? Because when we receive everything from the customer, this is in terms of requirement. They are just requirements, they are just description what he want, right? So there might be chances that the managers, developers and tester will misunderstand this, these requirements, and develop application. So हम application UAT टेस्टिंग क्यों करते हैं? क्योंकि मैनेजर्स जो भी रिक्वायरमेंट आती है कस्टमर की, वो आती है, डिस्क्रिप्शंस रहती है, हमारे पास एक यूज़र स्टोरी होती है, ठीक है? तो हम लोग जो भी रिक्वायरमेंट आती है हमें ओरली बताया जाता है, वो ओरली जो है हमें दिया हुआ, ठीक है? एक्सपीरियंस जो भी क्लाइंट ने दिया हुआ था, तो उसे हमने यूज़र स्टोरी में कन्वर्ट किया है, मतलब डिस्क्रिप्शन लिखा है उसका। सो ओरली प्रोवाइड किया था, उसका डिस्क्रिप्शन बनाया है। तो उसके बाद में डेवलपर्स, टेस्टर्स क्या करते हैं और उनके मैनेजर्स क्या करते हैं,
कि वो जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से प्रोजेक्ट मैनेजर यूज़र स्टोरी बनाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट ओनर, ठीक है, यूज़र स्टोरी बनाएगा। उस यूज़र स्टोरी को अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक डेवलपर कोडिंग करेगा, उसके हिसाब से डेवलपमेंट करेगा, उसे जो समझ में आया वो। ठीक है, सेम इन टर्म्स ऑफ टेस्टर है। ठीक है, सो टेस्टर अपने हिसाब से उस एप्लीकेशन को टेस्ट करेगा, राइट। सो हो सकता है कि ये सब जो हमने एप्लीकेशन बनाया है वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और क्लाइंट को जो रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, वो फुलफिल नहीं हो रही, क्योंकि क्लाइंट ने जब रिक्वायरमेंट बताई थी वो कुछ डिफरेंट थी और ये कुछ बनाया गया है डेवलपमेंट टीम और टेस्टिंग टीम ने टेस्ट करके, ये सब कुछ अलग ही बना हुआ है। सो जस्ट टू मेक श्योर कि क्लाइंट ने जो बनाया, मतलब बनाने के लिए दिया था, मेरे जो रिक्वायरमेंट दी थी, वो ठीक से बनी है या नहीं, उसका फीडबैक देने के लिए हम लोग यूएटी करते हैं। दैट इज अ यूएटी टेस्टिंग। तो यूएटी टेस्टिंग किस तरह से होती है वो देखेंगे। ठीक है, यूएटी टेस्टिंग is a type of testing performed by the team or the client to verify that the application or the software system, I will read it again. Okay, so UAT is a type of testing performed by the team or the client to verify that the software system before the software application to the production environment. UAT is done in the final phase of testing after functional integration and system testing is done. Okay, सो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, मतलब यहाँ पे यह क्या लिखा हुआ है कि हम लोग यूएटी क्यों परफॉर्म करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना है हमें, क्योंकि ये एप्लीकेशन एक लास्ट स्टेज होगी हमारे टेस्टिंग के अंदर, क्योंकि इसके बाद हमारा एप्लीकेशन सीधा जाएगा प्रोडक्शन के ऊपर। तो ये फाइनल टेस्टिंग है, जैसे हमने फंक्शनल टेस्टिंग की, इंटीग्रेशन टेस्टिंग की, वो उसके बाद में सिस्टम फंक्शनलिटी टेस्टिंग की। सो दिस आर द लाइक अ फ्लो। ठीक है, तो ये यूजर एक्सेप्टेंस है, तो ये आती है एकदम लास्ट में, उसके बाद में आता है प्रोडक्शन में। तो इसके पहले आपने जो भी टेस्टिंग की है, सैनिटी, स्मोक, वो सब आपने डेव एनवायरनमेंट में की है। उसके बाद में आपने स्टेबल बिल्ड टेस्ट पे डाली, टेस्ट पे डालने के बाद आपका एक स्प्रिंट का एक स्टेबल बिल्ड टेस्ट पे रहेगा। और जब भी समझो आज, अभी समझो मुझे फ्राइडे को शाम को डेमो देना है क्लाइंट को, तो इसके पहले मैं जो भी काम कर रहा हूँ स्प्रिंट के अंदर, वो तो मेरा काम चालू ही रहेगा। मैंने पिछले वीक में जो कुछ स्प्रिंट मेरा फाइनल हुआ था, वो स्प्रिंट को मैं टेस्ट के ऊपर डिप्लॉय करूँगा। ठीक है, अभी मेरा करंट स्प्रिंट चालू है, करंट स्प्रिंट मतलब करंट वीक चालू है, तो इसका मेरा काम चालू रहेगा डेव एनवायरनमेंट पे। मैंने इसके पहले मेरे अगर एक स्प्रिंट काम हुई था और वो स्प्रिंट का स्टेबल बिल्ड मेरा टेस्ट के ऊपर है। ठीक है, टेस्ट के ऊपर एक स्टेबल बिल्ड रहेगा, डेव के ऊपर मैं करंट बिल्ड में करंट स्प्रिंट में जो कुछ भी मेरी टेस्टिंग रहेगी एक्टिविटी, ठीक है, वो एक्टिविटी करूँगा। और जब भी मुझे यूएटी के लिए मुझे क्लाइंट की तरफ से मेरा डिस्कशन हुआ है कि वी आर रेडी एंड वी वांट अ यूएटी टेस्टिंग, मुझे यूएटी टेस्टिंग करनी है तुम्हारे साथ, तो आप लोग जो है सैटरडे को या फ्राइडे को, ठीक है, फ्राइडे को हम लोग यूएटी टेस्टिंग करेंगे। तो हमारा ये जो स्टेबल बिल्ड रहेगा जिसके ऊपर हम लोग फीडबैक देने वाले हैं या यूएटी देने वाले हैं, तो ये बिल्ड उस दिन, जैसे कि समझो 5:30 बजे मीटिंग रहेगी, तो 5 बजे हम लोग डिप्लॉय करेंगे यूएटी के ऊपर। ठीक है, उस टाइम पे टेस्टिंग करेंगे। तो टेस्टिंग इस टाइम पे कौन करेगा, टेस्टिंग हम ही लोग करेंगे, लेकिन इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे क्लाइंट की तरफ से। ठीक है, जो कुछ भी इंस्ट्रक्शन है, तो फिर जो कुछ भी डेमो दिखाना है वो हम ही लोग रिप्रेजेंट करेंगे डेमो, लेकिन उस पर हमें क्लाइंट बताएंगे। जैसे कि आपका कभी डेमो हुआ होगा, आपका प्रेजेंटेशन हुआ होगा क्लास में, कॉलेज में, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, आप लोग प्रेजेंटेशन करते हो, लेकिन क्वेश्चंस कौन पूछते हैं, एक्सटर्नल पूछते हैं, आपके टीचर्स पूछते हैं। सो दैट इज़ लाइक अ यूएटी टेस्टिंग, जो रियल टाइम एनवायरनमेंट आपकी। ठीक है, जहाँ पे क्लाइंट और हम एक कॉल के थ्रू ज्वाइन करते होंगे, क्योंकि हम लोग अगर इंडिया में बैठे हैं तो क्लाइंट बैठा होगा कौन से भी कंट्री में। ठीक है, तो वहाँ से वो कनेक्ट करेंगे, हमें बताएंगे कि एक्चुअली क्या होना चाहिए। ठीक है, सो क्लाइंट्स के कुछ लोग होते हैं जो जिम्मेदारी होती है उनकी, तो वो हमें देखेंगे कि हमने एप्लीकेशन क्या बनाया है, और उस तरह से हम लोग उसे
फिर मतलब ये डेमो देंगे और वो डेमो के ऊपर उनको जो भी समझ में आता है, उनको जो भी ये लगता है वो हम लोग बताएंगे। अब इस टाइम पे हमें कुछ डिफेक्ट्स मिल गए, ठीक है, बग्स मिल गए। डिफेक्ट भी बोल सकते हो, बग भी बोल सकते हो, ठीक है, बग मिले। तो ये बग टेस्टिंग हम ही लोग कर रहे हैं, राइट, है कि नहीं, हम ही लोग करेंगे। तो हमें जो डिफेक्ट मिलेंगे वो हम कंसिडर करते हैं क्लाइंट्स डिफेक्ट करके, क्लाइंट्स डिफेक्ट्स। ओके, तो हमारे पास एक फार्मूला था A/A+B। तो फार्मूला किया क्या था, यहाँ पे A और B क्या थे, हेलो, A का मतलब क्या था और B का मतलब क्या था। सो A विल बी the defects found by the developer and B will be the UAT. At the time of UAT we found some defects, so depending on that we will found the ratio. So depend on that the DRE means how the application is tested is calculated. Okay, the main purpose of UAT to validate start to end flow. It does not focus on cosmetic error, spelling mistake or system testing. Okay, तो हम लोग जब एप्लीकेशन को डेमो देने वाले हैं तो हम लोग छोटे छोटे एरर्स पे ध्यान नहीं देंगे, स्पेलिंग मिस्टेक के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, हम लोग स्टार्ट टू एंड फ्लो के ऊपर ध्यान देंगे। ठीक है, हमने जो एप्लीकेशन बनाया है वो एप्लीकेशन का हैप्पी पाथ वर्क होना चाहिए। हैप्पी पाथ मतलब क्या, कि अगर मेरे प्रोडक्ट का मुझे प्लेस करना है कोई ऑर्डर, ठीक है, तो वो मेरा हैवी पाथ रहेगा, तो उसके अंदर मुझे थोड़ा सा एरर आते होंगे, कॉस्मेटिक एरर, छोटे छोटे एरर या फिर स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं उनके ऊपर ध्यान नहीं देने वाला। ठीक है, नीड ऑफ यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्यों है, arises when software has undergone unit integration and system testing, because developer might build some software based on the requirement document by their own understanding, and further requirement changes during the development may not be effected communicated to them. So for testing whether the final product is accepted by client or end user, user acceptance testing is needed. तो जैसे पहले ही बताया था मैंने कि यूजर एक्सेप्ट टेस्टिंग क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमने जो एप्लीकेशन बनाया है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, तो हमें मेक श्योर करना है कि हमने जो कुछ भी एप्लीकेशन बनाया है वो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। ठीक है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज कैरिड आउट इन अ सेपरेट टेस्टिंग एनवायरनमेंट विद अ प्रोडक्शन लाइक डेटा सेटअप। इट इज़ अ काइंड ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग वेयर 2 और मोर एंड यूजर्स विल बी इन्वॉल्व। ठीक है, तो यूएटी पे ही हम लोग क्यों करते हैं ये टेस्टिंग, टेस्ट एनवायरनमेंट में क्यों नहीं करते, क्योंकि यह यूएटी का जो डेटा रहेगा, ठीक है, अभी डेव एनवायरनमेंट और टेस्ट एनवायरनमेंट में क्या होता है, हम लोग जो डेटा यूज़ करते हैं वो हमने खुद ने बनाया हुआ होता है, वो होता है डमी डेटा। ठीक है, डमी डेटा। तो यूएटी एनवायरनमेंट ही क्यों होता है, क्योंकि यूआईटी एनवायरनमेंट में जो है ना प्रोडक्शन लाइक डेटा रहता है, मतलब प्रोडक्शन पे जो डेटा रहता है उसका रिप्लिका रहता है, मतलब सेम टू सेम डेटा नहीं रहता लेकिन उसका कॉपी बनाया जाता है, क्योंकि हमें चेक करना होगा कि हमारा एप्लीकेशन प्रोडक्शन लाइक डेटा में किस तरह से वर्क होगा। तो हम एक्चुअली प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा टेस्टिंग तो नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे लाइव कस्टमर्स का डेटा है, तो इसलिए हमने यूएटी एनवायरनमेंट बनाया है जहाँ पे उसका पूरा एनवायरनमेंट का स्ट्रक्चर जो है प्रोडक्शन लाइक होगा, डेटा भी उसी तरह का होगा और उसी एनवायरनमेंट पे हम लोग टेस्टिंग करेंगे, कि हमें कल जाके पता होना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं अगर प्रोडक्शन में इसी तरह का डेटा होगा। तो दैट्स वाई यूएटी इज़ डन इन सेपरेट एनवायरनमेंट। कहीं कहीं ऑर्गेनाइजेशन में यही टेस्टिंग जो है वो टेस्ट एनवायरनमेंट पे भी लेके जाते हैं। ठीक है, किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में 3 ही एनवायरनमेंट रहेंगे, वो रहेंगे डेव, टेस्ट और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में 4 एनवायरनमेंट रहेंगे, डेव, टेस्ट, यूएटी एंड प्रोडक्शन। तो डिपेंड्स ऑन यूर क्लाइंट्स, आपके पास कितने एनवायरनमेंट है, डिपेंडिंग ऑन उस तरह से आप यूएटी का यूज़ करोगे। आप टेस्ट के ऊपर भी यूएटी कर सकते हो अगर आपके पास यूएटी एनवायरनमेंट नहीं है, तो उस टाइम पे आपके पास 3 ही एनवायरनमेंट रहेंगे, डेव, टेस्ट एंड प्रोडक्शन। अगर 4 एनवायरनमेंट रहेंगे तो यूएटी के लिए सेपरेट एनवायरनमेंट दिया गया है, तो वहाँ पे आप लोग टेस्टिंग कर सकते हो। ओके, वी टू स्टार्ट
to end testing of the application so that all the scenarios are covered and test cases are designed accordingly. ओके तो हम लोग जो है स्टार्ट टू एंड टेस्टिंग करने वाले हैं और हम लोग मेजर करेंगे और हम लोग देखेंगे कि हमारे जो टेस्ट सिनारियो रहेंगे जो हमने कवर किए हैं तो ओवरऑल फंक्शनैलिटी को कवर करने चाहिए। अगर हम लोग यूएटी के टाइम टेस्ट केसेस बना भी रही है तो वो स्टार्ट टू एंड के टाइप बनाएंगे। ठीक है, स्टार्ट टू एंड में उनका फ्लो होना चाहिए। तो यूएटी क्यों होती है? क्योंकि हमें क्लाइंट की तरफ से डेमो लेना है, फीडबैक लेना है। In UAT, we give demo to the customer and take a feedback from the client. Okay. With UAT, the client can be sure what to expect from the product other than assuming. तो UAT क्यों होती है? क्योंकि हमें एप्लीकेशन को डेवलपर को मतलब एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है प्रोडक्शन पे, तो यूज़र को भी होना चाहिए, पता होना चाहिए, क्लाइंट को भी पता होना चाहिए कि हम लोग ने क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए एप्लीकेशन के थ्रू। ठीक है, इन UAT वी कवर फंक्शनल कवरेजेस, डेटाबेस एंड API। जो कुछ भी आपका एप्लीकेशन रहेगा उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, फंक्शनल कवरेजेस, डेटाबेस एंड API टेस्टिंग, जो कुछ भी हमारा कंपोनेंट है वो हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, प्रीरिक्विजिट्स ऑफ यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ओके, प्रीरिक्विजिट्स मतलब क्या है कि अगर UAT मुझे चालू करना है तो उसके पहले मुझे कुछ प्री कंडीशंस रहेंगी, मुझे कुछ रिक्वायरमेंट्स रहेंगे जो फुलफिल होने चाहिए जब मैं UAT एक्सेप्ट कर रहा हूँ या फिर UAT स्टार्ट करना। तो वो क्या हो सकते हैं? ओके, तो तुम्हारे जो भी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स है वो अवेलेबल होना चाहिए। एप्लीकेशन कोड शुड बी फुल्ली डेवलप्ड। अब जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपका डेवलपमेंट पूरा होना चाहिए। यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम की पूरी टेस्टिंग कंप्लीट होनी चाहिए। नो शो स्टॉपर डिफेक्ट, हाई और मीडियम प्रायोरिटी डिफेक्ट इन द सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्ट फेज। तो जो कुछ भी शो स्टॉपर डिफेक्ट्स है, शो स्टॉपर डिफेक्ट्स मतलब क्या होते हैं? इसे हम ब्लॉकर डिफेक्ट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, ब्लॉकर शो स्टॉपर डिफेक्ट मतलब क्या होता है कि अगर आपको लॉगिन फंक्शनैलिटी के ऊपर काम करना है, लॉगिन के ऊपर काम करना है, तो लॉगिन के ऊपर अगर काम करना है आपको, ठीक है, तो आपकी लॉगिन फंक्शनैलिटी काम नहीं कर रही है, your login functionality is not working, so how you will logged into your application? So this is a show stopper defect, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है कि नहीं? तो उसे बोला जाता है शो स्टॉपर डिफेक्ट या फिर ब्लॉकर डिफेक्ट्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है और इसे हमें सॉल्व करना है। तो दैट्स वाई इसे बोला जाता है शो स्टॉपर या फिर ब्लॉकर डिफेक्ट्स। तो ये सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम लोग एप्लीकेशन को UAT के अंदर जा रहे हैं। तो शो स्टॉपर डिफेक्ट या फिर ब्लॉकर डिफेक्ट, उसके साथ में ही हाई प्रायोरिटी एंड मीडियम प्रायोरिटी डिफेक्ट जो है वो सॉल्व होने चाहिए। ओनली कॉस्मेटिक एरर्स इज एक्सेप्टेड और बिफोर UAT। मतलब कॉस्मेटिक क्या है? एकदम लो प्रायोरिटी, लो सेवेरिटी, एकदम छोटे डिफेक्ट जिसका इम्पैक्ट किसी कंपोनेंट के ऊपर नहीं है। ठीक है, वो हमें बाद में भी दे सकते हैं। रिग्रेशन टेस्टिंग शुड बी कंप्लीटेड विथ नो मेजर डिफेक्ट्स। ऑब्वियसली हम लोग जो है डेव एनवायरनमेंट से टेस्ट एनवायरनमेंट से आइए, टेस्ट एनवायरनमेंट से UAT में चले गए तो हमें इम्पैक्ट चेक करना पड़ेगा। राइट, हम लोग एनवायरनमेंट चेंज कर रहे हैं, तो जब भी एनवायरनमेंट चेंज होगा तब हम रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। ओके, उसके बाद में रिग्रेशन टेस्टिंग शुड बी कंप्लीटेड विथ नो मेजर डिफेक्ट्स। ऑब्वियसली मेजर डिफेक्ट्स चाहिए ही नहीं, ये पॉइंट्स यहीं पे कवर हो जाता है। नो स्टॉपर डिफेक्ट, नो शो स्टॉपर डिफेक्ट्स, हाई एंड मीडियम प्रायोरिटी डिफेक्ट। उसी के साथ ऑल द रिपोर्टेड डिफेक्ट्स शुड बी फिक्स्ड एंड टेस्टेड बिफोर UAT। जितने भी डिफेक्ट्स हैं उतने सारे कॉस्मेटिक एरर्स अगर हम लोग लेके जा रहे हैं तो विदाउट दिस एरर जो कुछ भी डिफेक्ट्स रहेंगे, जो कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा, जितने भी डिफेक्ट्स है वो क्लोज होने चाहिए बिफोर UAT। अगर आपका हाई प्रायोरिटी
जैसे कि कॉस्मेटिक एरर्स छोड़ के मीडियम प्रायोरिटी या फिर आपके हाई प्रायोरिटी, शो स्टॉपर डिफेक्ट, इन सब को आपको छोड़ के आप यूएटी टेस्टिंग में नहीं जा सकते। ठीक है, ऑल द रिपोर्टेड डिफेक्ट शुड बी फिक्स्ड एंड टेस्टेड बिफोर यूएटी। ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स फॉर ऑल टेस्टिंग शुड बी कंप्लीटेड। तो ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स क्या है, ये हम आगे जाके देखने वाले। यूएटी एनवायरनमेंट, अभी हम लोग क्लाइंट को डेमो देने जा रहे हैं 5 बजे के पहले, 5 बजे। उसके पहले हमारा जो यूएटी एनवायरनमेंट है उसके ऊपर हमारा जो बिल्ड है वो बिल्ड हमारा रेडी होना चाहिए। उसके बाद में आता है साइन ऑफ मेल और कम्युनिकेशन फ्रॉम सिस्टम टेस्टिंग टीम दैट सिस्टम इज रेडी फॉर यूएटी एग्जीक्यूशन। तो साइन ऑफ मेल मतलब क्या होता है, आपने डेमो दिया, ठीक है, डेमो देने के बाद आपका कस्टमर का फीडबैक अच्छा आया, ठीक है, तो हमें एक समरी ईमेल टाइप करना पड़ता है। ठीक है, कस्टमर का फीडबैक कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो बहुत अच्छा है, गुड है, एंड नो अदर फीडबैक। तो फीडबैक आइटम अगर नहीं रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को क्या करेंगे, एप्लीकेशन को, इसी फीचर को क्या करेंगे, प्रोडक्शन पे डिप्लॉय करेंगे। तो हमें एक वेरीफाई करना पड़ेगा कि प्रोडक्शन में हमने कौन कौन से फीचर्स दिखाए हैं, कौन कौन से फीचर्स को हमने डेमो दिया है। अगर हमें कुछ एरर इशू मिले होंगे, डिफेक्ट्स मिले होंगे, तो वो भी डिफेक्ट्स बताने पड़ेंगे। हमने जो जो फीचर्स का डेमो दिया है उनके नाम, फीचर 1, फीचर 2, इस तरह के सारे पूरे फीचर्स। अगर फीडबैक मिला होगा तो उसका फीडबैक क्या है और कौन कौन से डिफेक्ट्स हमें मिले थे, तो इस सब का साइन ऑफ ईमेल होता है कि हमने अच्छे तरह से डेमो कंप्लीट किया है, यूएटी टेस्टिंग का डेमो कंप्लीट करके हमने जो है एप्लीकेशन को रिलीज करना है हमें, या फिर हमने कंप्लीट हुआ है। तो ये साइन ऑफ ईमेल मतलब क्या होता है कि मैं कंप्लीट, हमने एक्टिविटी कंप्लीट की है, ये एक प्रूफ है कि हमने जो अभी यूएटी एक्टिविटी की है, डेमो दिया है क्लाइंट को, तो इसके जो पॉइंट्स है ये इस ईमेल में आएंगे। मतलब जो कुछ भी डिस्कशन हुआ था उसका एक ये दे रहे हैं हम लोग ईमेल में, कि अगर कल जाके मुझे देखना पड़ेगा कि हमने डेमो उस पिछले टाइम पे डेमो किस किस चीज़ का दिया था, या फिर फीडबैक क्या आया था, या फिर डिफेक्ट कुछ मिले थे, तो उस टाइम पे हम लोग साइन ऑफ ईमेल चेक करते हैं। और ये साइन ऑफ ईमेल में कौन कौन रहेगा, क्लाइंट्स रहेंगे, ठीक है, क्लाइंट को भेजा जाएगा, फिर आपके मैनेजर्स, मतलब अपनी जो कोर टीम है, ठीक है, कोर टीम मेंबर्स, क्योंकि हर एक डेवलपर और टेस्टर्स नहीं होता, जैसे सीनियर मेंबर हो सकते हैं, जूनियर मेंबर्स नहीं होते हैं इस यूएटी टेस्टिंग में, क्योंकि पर्टिकुलर टीम होती है, ठीक है, मैनेजर्स रहेंगे, लीड रहेंगे, या फिर सीनियर मेंबर रहेंगे। जो आपके टीम में जूनियर रहेंगे ना, वो जूनियर लोगों को हम लोग इस मीटिंग में नहीं लेते हैं, क्योंकि ये अलग मीटिंग होती है जिसमें क्लाइंट भी इन्वॉल्व होता है ना। तो इन सब के साथ हम लोग मेंशन नहीं करते हैं, हम लोग नहीं बोलते हैं मैनेजर्स, लीड या सीनियर मेंबर के साथ जूनियर मेंबर्स को हम लोग नहीं बुलाते हैं इस मीटिंग में। तो इन सब को ये ईमेल सेंड किया जाता है, कोर टीम मेंबर, फिर उसके बाद में बीए। तो बीए आता है, कभी कभी आता है बीए, हर टाइम पे नहीं आता है, ज़रूरी नहीं है बीए रहेगा, और ठीक है, बीए भी हो सकता है। और उसके बाद में आपके जो भी हायर अथॉरिटीज़ है, जो भी आपका प्रोजेक्ट हैंडल करते हैं, आपके टीम के ऊपर के जो भी रहेगा, बिजनेस एनालिस्ट के ऊपर जो भी कुछ सीनियर मेंबर्स रहेंगे, उनको भी पता होना चाहिए कि हमने प्रोडक्शन पे डिप्लॉय किया है। सो ये सब इस ईमेल में होते हैं, तो उन सबको पता चलता है कि एक्चुअली हमने इसमें क्या किया है, ठीक है, इस फीचर में क्या क्या किया है। तो साइन ऑफ ईमेल भेजा जाता है,
यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में क्या क्या होता है। सबसे पहले एनालिसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, ठीक है, मुझे ये लगता है ये आगे आएगा। तो ये डायग्राम के हिसाब से इसका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, ये डायग्राम है पूरी, उसके हिसाब से मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। तो वन बाय वन देखेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहली स्टेज है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में एनालिसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, ठीक है, कि जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है जिसके ऊपर हमें डिप्लॉय मतलब यूएटी करनी होगी इन द फ्यूचर, उसके लिए हम लोग पहले से ही प्लानिंग करके रख रहे हैं, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट important activities in the UAT to identify and develop test scenarios. These test scenarios are delivered from the following document. तो हमें जो यूएटी टेस्टिंग करनी होगी, यूएटी टेस्टिंग करते वक्त हमें कुछ सिनारियोज मेंशन करने पड़ेंगे, इसके बाद में टेस्ट केस लिखने पड़ेंगे। तो वो टेस्ट केस सिनारियो हम लोग कहाँ से लेंगे, वो लेंगे बिजनेस यूज केसेस, यूज केस डायग्राम जो हमने देखा था, प्रोसेस फ्लो डायग्राम, ठीक है, डेटा फ्लो डायग्राम बोलते हैं इसे, बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, और एसआरएस, बीआरएस और एसआरएस डॉक्यूमेंट के अंदर से हम लोग जितना भी रिक्वायरमेंट ले सकते हैं उसके हिसाब से हम लोग एप्लीकेशन का यूएटी टेस्टिंग के लिए टेस्ट सिनेरियो डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद में एक यूएटी का प्लान बनाएंगे, जैसे एनालिसिस हो गया रिक्वायरमेंट का, टेस्ट सिनेरियोज बन गए, उसके बाद में यूएटी का प्लान करेंगे, ठीक है। So UAT test plan outlines the strategy that will be used to verify and ensure an application meet its business requirements. It documents entry and exit criteria of UAT, test scenario, test cases approach and timeliness of testing. तो हमारे पास जो क्लाइंट का जो UAT टेस्टिंग का एनवायरनमेंट होता है, इस टाइम पे हमारे पास लिमिटेड टाइम रहेगा, हम लोग मोर देन 30 मिनट्स नहीं दे सकते, ठीक है। 30 मिनट्स का मीटिंग रहेगा, वो एक्सटेंड हो जाके आपका 40 मिनट्स 45 मिनट्स के ऊपर नहीं जाता है कभी, 40 मिनट्स मैच पकड़ लो, ठीक है। तो क्लाइंट के साथ हमारा जो मीटिंग बनेगा, हर एक इसके लिए एक मीटिंग बनता है, तो वो 30 to 40 मिनट्स तक चलेगा। अप्रॉक्सीमेटली आधे घंटा ही मीटिंग होता है, लेकिन 5-10 मिनट आगे ज़्यादा ले लो, ठीक है। तो 40 मिनट्स के अंदर हम लोगों को टेस्ट केसेस भी रन करने हैं, सिनारियोज भी दिखाने हैं, ठीक है। अभी ऐसा नहीं होता कि टेस्ट केस लिखने ही है या टेस्ट केस के साथ ही हम लोग दिखाएंगे यूएटी टेस्टिंग में, ऐसा नहीं है। टेस्ट केस हम लोग रन कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी टेस्ट केसेस भी हम लोग नहीं यूज़ करते, हम लोग सिर्फ रैंडमली एंड टू एंड फ्लो हैप्पी पाथ वर्क हो रहा है कि नहीं वो दिखाएंगे, कि उसमें अगर कुछ उसे फीडबैक लगा क्लाइंट को तो वो क्लाइंट बताएगा। अभी उसको एप्लीकेशन उस तरह से बना हुआ है, लेकिन उसे लगता है कि मुझे और कुछ एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा चाहिए, तो वो उसका फीडबैक है, ओके। तो वो फीडबैक हम लोग इस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करके बाद में नए स्प्रिंट के अंदर भी दे सकते हैं, ठीक है। अभी जो कुछ कस्टमर ने बताया है, मतलब जो कुछ भी हमें रिक्वायरमेंट दी गए है, ठीक है, वो रिक्वायरमेंट हमने एप्लीकेशन के डिप्लॉय मतलब उसके ऊपर एप्लीकेशन मतलब क्लाइंट जो है डेमो देने के बाद वो सेटिस्फाई हो गया है, ठीक है, गुड बोल रहा है, लेकिन उसको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा चेंजेस उसने खुद के एंड से बताए हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा चेंजेस जो पहले रिक्वायरमेंट में नहीं थे, तो ये फिर प्रीवियस रिक्वायरमेंट्स के अंदर नहीं थे लेकिन अभी बताए, तो वो भी एक्सेप्ट करने पड़ेंगे हमें। तो उसके ऊपर हम लोग डिप्लॉयमेंट करेंगे, मतलब डेवलपमेंट करेंगे, और ये जो करंट बिल था जो गुड बोला था वो हम लोग डिप्लॉय कर देंगे, ठीक है। लेकिन नया स्प्रिंट जब हमारा आएगा तो एक्सेप्ट करके न्यू स्प्रिंट के अंदर हम लोग इन फीडबैक आइटम के अंदर काम करेंगे, मतलब न्यू स्प्रिंट के अंदर फीडबैक आइटम आएगा जिसके अंदर नए चेंजेस एक्स्ट्रा चेंजेस तो बताए क्लाइंट ने, उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे, ओके। सो यहाँ पे यूएटी टेस्टिंग का प्लानिंग हो गया है। तो प्लानिंग में हमने एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया क्या होगा यूएटी का वो दिखाया है, मतलब क्या कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ से ख़त्म करना है। उसके बाद में टेस्ट सिनारियो, टेस्ट केसेस कौन कौन से होंगे, अगर टेस्ट केसेस होंगे तो टेस्ट केसेस लिखे होंगे तो वेल एंड गुड, और कई कई टेस्ट केस यूज़ होते हैं यूएटी के लिए, कहीं कहीं पे नहीं होता है, सिर्फ हैवी पाथ दिखाया जाता है। और इसका टाइमलीनेस तो हमारे पास है 30-40 मिनट, तो उसके अंदर सब खत्म होना चाहिए, ठीक है। आइडेंटिफाई टेस्ट केसेस एंड टेस्ट सिनारियो, टेस्ट सिनारियो मतलब क्या है, व्हाट एंड हाउ, जैसे मैंने इसके पहले एग्जांपल दिया था कि
डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का ऑपरेशन था। तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को किस तरह से टेस्ट करना है, ये हो गया हमारा टेस्ट सिनारियोस। और टेस्ट केसेस आपको पता है कि एक छोटी सी प्रोसेस रहेगी, ठीक है। वो टेस्ट केस मतलब क्या है कि पर्टिकुलरली किस तरह से एक कंपोनेंट को चेक करना है। सो ऑलवेज टेस्ट सिनारियो बड़ा होता है। वन टेस्ट सिनारियो कैन हैव मल्टीपल टेस्ट केसेस, but one test case have only one test scenario. Okay, so identify the test scenarios with respect to the high level business process and create test cases with clear test steps. The test cases should be sufficiently cover most of the UAT scenario. Business use cases are input for creating test cases. ठीक है, यूज केसेस जो हम बना रहे हैं उसके हिसाब से इनपुट होता है और उस तरह से हम लोग यूएटी टेस्ट केसेस बना सकते हैं। Preparing of test data. It is the best advice to use live data for UAT. Data should be scrambled for privacy and security reason. Tester should be familiar with the database flow. तो हम लोगों को क्या है, प्रिपेयर करना है डेटा, ठीक है। तो वो डेटा किस तरह से प्रिपेयर करेंगे हम लोग, रियल टाइम एनवायरनमेंट जैसे यूए मतलब प्रोडक्शन पे है उस तरह से ही करेंगे, लेकिन जस्ट फॉर सिक्योरिटी रीज़न और प्राइवेसी रीज़न कस्टमर के हम लोग उसे थोड़ा सा क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा चेंज करेंगे मतलब डेटा सेम ही रहने वाला है, एग्जैक्ट सेम नहीं रहेगा, उसमें हम लोग कुछ चेंजेस करेंगे जस्ट टू गिव प्राइवेसी टू कस्टमर्स डिटेल एंड प्रोवाइड द सिक्योरिटी टू आवर एप्लीकेशन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डेटा ये कर थोड़ा सा चेंज करते हैं, रन एंड रिकॉर्ड द रिजल्ट। तो अगर टेस्ट केसेस रहेंगे तो टेस्ट केसेस हम लोग क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, इसके बाद में हमारे पास रिपोर्ट आएगा, ठीक है। फेल टेस्ट केसेस को री एग्जीक्यूट करके हम लोग चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम आया था, किस तरह से एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आया था और क्या क्या डिफेक्ट्स आए थे। तो इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं एप्लीकेशन में यूएटी टेस्ट केसेस के लिए अगर टेस्ट केस लिखे होंगे तो। अदरवाइज हम लोग अगर वेरीफाई करने वाले हैं तो मेक श्योर करेंगे कि हम लोग कोई एरर नहीं आना चाहिए, लेकिन बता नहीं सकते हम लोग कि कभी कभी आ सकते हैं, राइट। तो उस टाइम पे आएंगे तो वो कंसिडर किया जाता है क्लाइंट्स के डिफेक्ट्स। सो अगर डेमो के टाइम डिफेक्ट्स आ रहे हैं मतलब हमने अच्छे से टेस्टिंग नहीं की है, तो एट द एंड ऑफ द डे हमें ही उसका रिस्पॉन्सिबल होना है, हमें ही उसको एग्जाम्पल देना है, हमें उससे पूछा जाता है कि ये डिफेक्ट क्यों नहीं फाइंड किया था या फिर फाइंड हुआ था इसके पहले। तो उसको रीज़न भी पूछ सकते हैं आपको, ठीक है, आपकी टीम कि अगर आप टेस्टर काम कर रहे हो तो अगर आपका वो सिनारियो काम नहीं करता है तो इसका मतलब है कि आपने टेस्टिंग नहीं की है। तो जब भी कोई एप्लीकेशन एनवायरनमेंट स्विच करता है, अगर अगले एनवायरनमेंट पे जाते हैं तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए डेवलपर नहीं रिस्पॉन्सिबल होता, ज़्यादा करके टेस्टर्स ही होता है, क्योंकि विदाउट टेस्टर्स अप्रूवल द टेस्ट बिल्ड कैन नॉट गो ऑन यूएटी, ओके। और डेव एनवायरनमेंट का अगर कोई बिल्ड रहेगा तो वो भी डेव एनवायरनमेंट से टेस्ट एनवायरनमेंट नहीं जा सकता। तो कभी भी स्विच होगा तो क्लाइंट कभी भी, क्लाइंट नहीं डेवलपमेंट टीम ये कभी टेस्टर को अप्रूवर मांगती है। तो अगर आईटी में चले जाओगे तो आपका मेन काम यही रहता है, आपको अप्रूवल देना है, आपको बताना है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो कितना स्टेबल है, राइट। तो इसीलिए यूएटी की जाती है। लास्ट है कंफर्म बिजनेस ऑब्जेक्टिव मीट। तो हमारे जो भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव रहेंगे वो मीट होने चाहिए। बिजनेस एनालिस्ट और यूएटी टेस्टर्स नीड टू सेंड अ साइन ऑफ मेल आफ्टर द यूएटी टेस्टिंग। After sign-off mail, the product is good to go to production. Deliverables for UAT testing are test plan, UAT scenario, test cases, test result and defect log। तो उस ईमेल में क्या क्या होता है वो बताया गया है। जैसे साइन ऑफ ईमेल है, साइन ऑफ ईमेल मतलब क्या है कि एक समरी है कि हमने उस मीटिंग में क्या क्या डिस्कस किया और उसमें से हमें क्या क्या सीखने मिला या फिर हमें बताया गया है। तो उसमें क्या क्या होता है साइन ऑफ ईमेल में कि यूएटी टेस्टिंग का हमारा प्लान क्या था, हमने यूएटी सिनारियो कौन कौन से थे, टेस्ट केसेस कितने हुए थे, उसका रिजल्ट क्या आया, कितने पास हुए कितने फेल हुए, अगर मुझे डिफेक्ट मिले तो कितने डिफेक्ट मिले हैं, ठीक है। एग्जिट क्राइटेरिया क्या होता है यूएटी के लिए,
एग्जिट क्राइटेरिया मतलब क्या कि क्लोज करने का क्राइटेरिया। बिफोर मूविंग इनटू प्रोडक्शन फॉलोइंग नीड्स टू बी कंसीडर, नो क्रिटिकल डिफेक्ट्स टू ओपन, बिजनेस प्रोसेस सेटिस्फैक्टरी वर्क होनी चाहिए, और साइन ऑफ मीटिंग होनी चाहिए तुम्हारे स्टेक होल्डर के साथ। ठीक है, भी साइन ऑफ ईमेल करोगे तो आपको ईमेल पे मिल ही जाएगा, राइट। तो अगर वो चाहते हैं तो साइन ऑफ ईमेल सेंड करोगे आप, साइन ऑफ ईमेल के बाद आप प्रोडक्शन पे डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। अभी जब प्रोडक्शन पे डिप्लॉयमेंट होता है ना, तो उस टाइम पे भी आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। ठीक है, कौन सा भी एप्लीकेशन अगर यूएटी एनवायरनमेंट पे जा रहा है, उसके बाद में वो प्रोडक्शन पे जा रहा है, अगर हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं तो डिप्लॉय करने के पहले हमें क्लाइंट की तरफ से इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, हमें उन्हें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि कैन आई डिप्लॉय द न्यू रिक्वायरमेंट ऑन प्रोडक्शन और यूएटी। जब हमारे क्लाइंट का अप्रूवल आता है तभी जाके हम लोग डिप्लॉयमेंट करते हैं। आपको लगता है टेस्टर टीम को या फिर डेवलपमेंट टीम को लगता है तब जाके हम कौन से भी टीम पे मतलब एनवायरमेंट पे, ठीक है, टेस्ट के ऊपर भी नहीं कर सकते, यूएटी के ऊपर भी नहीं कर सकते और प्रोडक्शन के ऊपर ही नहीं कर सकते। इसके लिए हाँ डेव एनवायरनमेंट पे करना है आपको डिप्लॉयमेंट, तो डेव के ऊपर हम लोग कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे हमारा एप्लीकेशन हम लोग टेस्टिंग करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो उस एनवायरनमेंट पे हम लोग कितने ही बार डेवलपमेंट कर सकते हैं, इसके लिए हमें किसी पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एप्लीकेशन डेव यूएटी और प्रोडक्शन पे जाएगा तो इसके लिए हर बार हमें क्लाइंट को पूछना पड़ेगा कि हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं क्या। अगर क्लाइंट का अप्रूवल आता है तभी जाके हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं। अभी समझो मेरा आज 5:30 बजे डेमो है, ठीक है, लेकिन क्लाइंट का मेरा कांटेक्ट ही नहीं हुआ है, क्लाइंट अवेलेबल ही नहीं है। अभी क्लाइंट यूएसए में काम करता है, मैं इंडिया में काम करता हूँ। अगर क्लाइंट का रिस्पांस नहीं आता है तो मेरा आज का डेमो या फिर मेरा आज का डिप्लॉयमेंट नहीं होगा। जब भी क्लाइंट की तरफ से मतलब ईमेल आएगा या फिर मुझे रिस्पांस आएगा उनकी तरफ से, तभी जाके मैं नया बिल डिप्लॉय कर सकता हूँ। ठीक है, पॉइंट्स टू बी कंसिडर टू बी मेक यूएटी सक्सेसफुल, प्रिपेयर यूएटी प्लान अर्ली इन द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, जो कुछ हमारा यूएटी का प्लान है वो प्लान हमें पहले ही कंसिडर करना पड़ेगा। जब भी हम लोग एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं तो उस प्लान के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। प्रिपेयर चेकलिस्ट बिफोर यूएटी स्टार्ट, जब भी यूएटी स्टार्ट होने वाली है उसके पहले हम लोग इंटरनली एक मीटिंग लेके चेक कर सकते हैं कि हमें क्या क्या दिखाना है और आप किस तरह से डेमो दोगे। ठीक है, कंडक्ट प्री यूएटी सेशन ड्यूरिंग सिस्टम इन टेस्टिंग फेज इटसेल्फ। अगर हमने अभी समझो आप में से कोई एक पर्सन है जो क्लाइंट को डेमो देने वाला है, ठीक है, क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करने वाला है, तो अगर आप डेमो देने वाले हो तो आपको डेमो देने के पहले आपके टीम मेंबर के साथ एक बार सेशन में लेना पड़ेगा, आपको एक मीटिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी और उस टाइम पे हम लोग प्लान करेंगे कि हम एप्लीकेशन में क्या क्या और कितना कितना एप्लीकेशन को डेमो के टाइम बताने वाले हैं। ठीक है, सेट द एक्सपेक्टेशंस एंड डिफाइन द स्कोप ऑफ यूएटी क्लियरली, मतलब हम लोगों ने इस मीटिंग में क्या क्या करना है, क्या क्या स्कोप रखना है, ये क्लियर रखना होगा। टेस्ट स्टार्ट टू एंड बिजनेस फ्लो एंड अवॉइड सिस्टम टेस्ट, तो स्टार्ट टू एंड करेंगे, एप्लीकेशन का फ्लो एक बार चेक करेंगे, टेस्ट द सिस्टम और एप्लीकेशन विद द रियल वर्ल्ड सिनेरियो एंड डेटा। तो जो कुछ भी रियल टाइम डेटा रहेगा जो यूआईटी पे हम लोग रियल टाइम डेटा के साथ करने वाले हैं, जितना भी हो सकता है रियल टाइम से करेंगे। थिंक एज अननोन यूजर टू सिस्टम, अभी क्लाइंट जो है वो अननोन यूजर है, अभी हमने जो है इतना टेस्टिंग किया है तो एज अ टेस्टर्स के हिसाब से किया है। ठीक है, तो अगर यूआईटी को सक्सेसफुल बनाना है तो अननोन यूजर क्या सोच सकता है, वो अननोन यूजर के हिसाब से सीखना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है एज अ टेस्टर हमें वो डिफेक्ट यूज टू हो जाता है, तो हम लोग क्या करता है, ह्यूमन बिहेवियर क्या करता है कि उसे निग्लेक्ट कर देता है, उसे इतना ध्यान नहीं देता है जितना देना चाहिए। तो एज अ अननोन यूज़र भी चेक करो तभी जाके आपका एप्लीकेशन अच्छे से वर्क होगा और आपको नए नए डिफेक्ट्स मिलेंगे। परफॉर्म यूजेबिलिटी टेस्टिंग, कंडक्ट फीडबैक सेशन एंड मीटिंग बिफोर मूविंग टू प्रोडक्शन। उसके बाद में आते हैं टाइप्स ऑफ मीटिंग्स, मतलब टाइप्स ऑफ यूएटी, जो हम लोगों को 2 टाइप्स के मीटिंग्स है। ठीक है, तो ये हम लोग कल देखते हैं टाइप्स ऑफ यूएटी।